All right, everybody. So today I'm starting. Okay, first of all, what is my name? My name is Abdul Basit, and I'm a certified camera teacher for O and A levels mathematics and accounting. First of all, I have to introduce you to the syllabus. Okay, I'll be teaching two syllabuses in one class, and this is IGCSE and GCE mathematics. So IGCSE and the code is 4024, and IGCSE is 0580. Both the syllabuses, they are same. Students who are appearing this year and the next year, they'll be appearing in two syllabuses. Like for example, GC Maths 4024, it has two papers. It has two papers. One is paper one and another one is paper two. So paper one and paper two. Okay. Both papers are 50% in weightage, but paper one is without calculator. This is without calculator, and this is with calculator. बेटा ये with calculator पेपर होगा. ठीक है जी. Those students appearing in IGCSE, they have to appear in 0580 syllabus code. So in 0580 we have one option which is core maths, and that is extended maths. ठीक है. उसमें core और extended का ऑप्शन भी आपके पास होता है. अच्छा ये क्या होता है? सिर्फ IGCSE के स्टूडेंट ही सुन लें इसको. core maths में we have paper 1 and paper 3, and in extended maths we have paper 2 and paper 4. ठीक है. This is extended options, and these two are core options. ठीक है जी. So in maths most of the okay जी, most of the syllabus is same, whether it is 4024 and 0580, but there are few changes in the syllabus. जिस क्लास में मैं 4024 के पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसमें आईजी वाले उस दिन छुट्टी करेंगे, और जो 0580 वाले होंगे वो उस दिन जीसी वाले छुट्टी करेंगे. तो वो अब आगे जाके होगा जब बिल्कुल कोर्स एंड होगा. सो स्टार्टिंग विद द कोर्स, so I'll share these notes later onwards. Okay, don't you worry about that. Okay, ये चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी बाद में. आप ये अब खाली सुन के समझना है खाली. ठीक है. Starting with the topic now. So the topic which I'm going to start is the number family. So let's start numbers family. So first of all, originally we have, I hope all of you can hear me loud and clear. Please turn on your mic and say yes. Yes. Okay, thank you so much. Okay, originally in maths we have 10 numbers, which is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And after 9, it's a repetition 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 31. This is a repetition. Originally, we have only these 10 digits. Okay. So then we have to start from the number family. So it's time to recall each and every concept. So let's do it. So for example, the first class is the whole number. Do you have any idea, anyone, that what whole numbers are? Anyone? We'll encourage the discussions. Whole numbers, they start from 0, 1, 2, 3, and up to infinite. Okay? It starts from 0. Okay. The second option we have is the natural numbers. Okay. So natural numbers, they start from 1, 2, 3, and up to so on. It means that there is a fact here now. अब यहाँ पे एक fact आ गया that 0, it's fact time that 0 is not a natural number. ठीक है. 0 जो है बेटा नेचुरल नंबर नहीं होता. ठीक है जी. जहाँ पे समझना पड़े पूछिएगा मुझसे. ठीक है. Okay. Third one is the third number we have is the class of even and odd numbers. So that is even numbers. Okay. The third one is even number. Ibad, how are you? I'm fine, sir. Alhamdulillah. How are you? Okay. Okay, I just started. Okay. It's one, two, three.
So even numbers are those numbers which are divisible by 2, जिसको हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम लोग इवन नंबर्स बोलते हैं। सो फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन। इसका मतलब ये है बेटा कि 2 के टेबल में जितने नंबर आते हैं वो तमाम जो हैं कि अगेन में फिर इफेक्ट आएगा के पास इवन नंबर में, एंड द फैक्ट इज इफ अ नंबर is ending with 0, 2, 4, 6 and 8, so it's even number. जैसे for example, if I write a number here 1026, is this even or odd? Look at the last digit. Is this even or Sir, odd? even. Yes, because the last digit is 6. Okay, what about this number now? Odd. It's odd because the last digit is odd number. ठीक है बेटा, is this clear everybody? Haika, is this clear to you? Yes, sir. Okay, now I'm proceeding with the even numbers. We have to go towards the odd numbers. लिखने की जरूरत नहीं है क्लास के दौरान, क्लास के बाद नोट्स मिलेंगे, क्लास में सिर्फ समझा करें, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, बहुत बेसिक है और मैं बिल्कुल बेसिक से मैथ्स कराता हूँ ताकि आपका सारा कुछ रिवाइज हो जाए। फोर्थ वन इज ऑड नंबर। फोर्थ वन इज ऑड नंबर्स। ओके, व्हाट आर ऑड नंबर्स which are not divisible by 2? Which are not divisible by 2, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। तो इसका मतलब है अगर कोई नंबर 0, 2, 4, 6, 8 पे एंड हो रहा है तो वो इवन नंबर होगा, और अगर एंड नहीं हो रहा तो वो ऑड होगा। सो लाइक फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग करते हैं तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 टिल इन्फिनिट। सो दीज आर ऑड नंबर्स, ठीक है जी। सो हमारे पास ये भी क्लियर होगा जी। बेटा किसी बच्चे को इवन और ऑड में कोई प्रॉब्लम है? Anyone having any problem in even and odd, you can tell me. जी बच्चा, किसी को प्रॉब्लम है इवन एंड ऑड में? No. ओके, दैट्स गुड। सो आई एम प्रोसीडिंग। क्लास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग पर्पस पे है। क्लास जो है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, वो मैं क्लास में जब वीडियो अपलोड करूंगा तो तब मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। ओके, ऑड नंबर्स। आफ्टर ऑड नंबर्स के बाद बच्चे वी हैव प्राइम नंबर्स। हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं बेटा? प्राइम नंबर्स। Prime. एंड दीज नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन जो है सिंस चाइल्डहुड हम लोग पढ़ रहे हैं, बस इतना याद रखें। इट दे हैव ओनली टू फैक्टर्स। बेटा मेरा फॉन्ट क्लियर है ना सबको? दे हैव Yes, Yes, ओनली sir. टू sir. फैक्टर्स। ओके, सो टू फैक्टर्स हैं। सो वन फैक्टर एक ये होगा एंड दूसरा फैक्टर ये होगा। अच्छा, एक फैक्टर होगा इसका 1 और दूसरा होगा इटसेल्फ, ये खुद ही, ठीक है जी। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और टेबल 1 में आते हैं। इंग्लिश में बताऊं तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन इज 1 एंड अनदर वन इज इटसेल्फ। गेट इट? लाइक फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। सो 2, 3, 5, 7। अब देखें 8 जो है इवन नंबर है, वो 2 के टेबल में भी आता है, 4 में भी आता है, 8 में भी आता है, तो इसका मतलब है वो प्राइम नंबर नहीं है। 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 इज प्राइम नंबर, अपने ही टेबल में आता है। 12 नहीं, 13 इज प्राइम नंबर। 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 इज प्राइम नंबर, सिर्फ अपने टेबल में आता है। 19 अपने टेबल में आता है। 20 नहीं, 21 भी नहीं क्योंकि 3 में आ रहा है, 7 में भी आ रहा है। 22 इज ऑल्सो इवन नंबर। 23 इज अ प्राइम नंबर, वो सिर्फ अपने टेबल में आ रहा है, ठीक है। एंड देन अगर आप आगे जाते जाएंगे तो 29 आपके पास प्राइम नंबर होगा, और अप टू सो ऑन जब तक नंबर्स हैं बीच में प्राइम और आपके पास डिफरेंट नंबर्स आते रहेंगे। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके,
ये इसको कहते हैं जी बेटा प्राइम नंबर। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, 5 6 ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा जब ये हमारा ये सारे नंबर्स पढ़ लेंगे हम लोग। फिर हमारे पास इसके बाद आते हैं बेटा कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है जी, कॉम्पोजिट नंबर्स इट्स द रिवर्स ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं बाद। ठीक है, तो जो इफ अ नंबर इज नॉट प्राइम सो देन इट इज डेफिनेटली अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, गेट इट। तो यहाँ पे इंग्लिश में मैं लिख Yes, दूंगा sir. दैट इफ अ नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, अगर कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं है, सो इट इज डेफिनेटली अ कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। अब टाइम है बाद फैक्ट का, कि सर इसमें भी कोई फैक्ट है कि नहीं, एग्री? Yes, sir. अब देयर इज अ फैक्ट हियर एज वेल। ठीक है, अब एक आपके पास है प्राइम नंबर, एक है आपके पास कॉम्पोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर्स क्या है बेटा, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जबकि कॉम्पोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। इज दिस क्लियर? जबकि कॉम्पोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। लाइक इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। इफ अ Yes. नंबर इज Yes. नॉट अ प्राइम नंबर, अगर कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। लेकिन इसमें एक फैक्ट है कि वन जो है, वन वन इज नीदर प्राइम नॉट कॉम्पोजिट। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लूंगा, उस बॉक्स में हम लिख देंगे फैक्ट। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अच्छा, आपने इसको रिमेंबर याद रखना है दैट वन इज नीदर प्राइम, नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। आई होप इंग्लिश सबको समझ आती है। अगर किसी को समझ नहीं आती मुझे बोले, मैं साथ साथ फिर उर्दू में भी ट्रांसलेट कर रहा हूँ। वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, कि वन ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। अच्छा, फ्रॉम कैम्ब्रिज पॉइंट ऑफ व्यू, कैम्ब्रिज पॉइंट ऑफ व्यू दिस प्राइम नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में हमेशा टेस्ट हो रहा होता है प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर हमेशा टेस्ट होता है, ऑलवेज इन द एग्जाम फॉर 1 मार्क। आपको 1 मार्क के लिए पेपर में देखने पड़ेगा। ठीक है, ये आप देखोगे पेपर में। ठीक है जी, ओके then from Cambridge point of view we have also irrational numbers, irrational numbers। ठीक है बेटा, ओके। एनीवन विद द आइडिया दैट व्हाट आर irrational numbers? किसी के पास कोई आइडिया है तो प्लीज डू शेयर। अगर आप में से किसी के पास कोई आइडिया है तो प्लीज मेरे साथ शेयर करें। those numbers those I numbers which cannot be written as फ्रैक्शंस, जिन नंबर्स को बेटा हम लोग फ्रैक्शंस में नहीं लिख सकते, वो होते हैं हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स। गेट इट? समझ आई बेटा? जो नंबर हमारे पास जो नंबर हमारे पास फ्रैक्शन में Yes, नहीं sir. लिख सकते उसको हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, प्लीज सुने। लाइक फॉर एग्जांपल पाई। अब पाई वी नो दैट, हमें पता है कि पाई की वैल्यू 22/7 है। ठीक है, लेकिन इन कैम्ब्रिज वी डोंट यूज इट बिकॉज 22/7 जो है वो 3.142, और ये नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, जो कि आगे जाके चेंज, नंबर्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, लाइक पाई। ठीक है, ओके, फॉर एग्जांपल लाइक पाई हो गया जी। ठीक है, अब इसके अलावा इसके अंदर क्या आएगा? इर्रेशनल नंबर्स के अंदर बेटा स्क्वायर रूट्स आते हैं, लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के। लाइक फॉर एग्जांपल √2, √3, √4 नहीं ले सकते क्योंकि √4 इज इक्वल टू 2। √5 ले सकते हैं, √6 ले सकते हैं, √7 ले सकते हैं, √8 ले सकते हैं, लेकिन √9 नहीं ले सकते क्योंकि √9 3 के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे √10 लेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं इर्रेशनल नंबर्स की। आप इनको कैलकुलेटर में जब पंच करोगे तो यू विल सी दैट कि इनको इनके एग्जैक्ट आप इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। इज दिस क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, मैं आपको जरा शो करता हूँ, वेट अ मिनट, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, स्क्रीन पे मैं कैलकुलेटर जरा ओपन कर लूँ।
ताकि आप लोगों को ज़रा और भी क्लैरिटी आपको हो जाए। ठीक है जी। ओके जी। लाइक फॉर एग्जांपल आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, अगर मैं देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट वन पंच करता हूँ तो आई गेट वन, बिकॉज वन की जगह पे मैं वन स्क्वायर भी लिख दूँ तो इट डजेंट चेंज माई वैल्यू। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट टू लिखता हूँ, देखें एवरीबॉडी चेक, स्क्वायर रूट टू ही आया है दोबारा आंसर। जब एस एन डी प्रेस करते हैं तो सी इतना बड़ा नंबर आ गया 1.41421356 हम इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। इनके आंसर्स कभी ख़त्म नहीं होते, ये कॉन्टिन्यूड रहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? Yes, sir. लाइक फॉर एग्जांपल इबाद, इफ आई से दैट स्क्वायर रूट 64, क्या स्क्वायर रूट 64 रैशनल है या Yes, sir. इरैशनल है? चेक करके देख लें बेटा, स्क्वायर रूट 64 जैसे ही मैं पंच करूंगा ये 8 आ जाएगा, सो इट इज रैशनल नंबर। ये क्या है बेटा? Rational. ठीक है। अगर मैं स्क्वायर रूट 65 लिखूंगा, देखना आंसर बहुत 8 पॉइंट समथिंग आएगा, जरा चेक करना प्लीज एवरीबॉडी। स्क्वायर रूट 65 इक्वल्स एस एन डी, लुक एट दैट, इतना बड़ा नंबर आ गया है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। ठीक है जी, इज दिस क्लियर? Yes, sir. सो दिस इज माई इर्रेशनल नंबर। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखें कि इर्रेशनल नंबर्स दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, हम लोग इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है जी। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन इरेशनल के हवाले से, ताकि मैं जरा क्लियर करूं? No, sir. एनी क्वेश्चन, एनी वन? No, sir. ग्रेट। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। ओके जी, देन वी हैव फ्यू स्क्वायर नंबर्स। ओके जी, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं बेटा? आपको एटलीस्ट फर्स्ट 15 स्क्वायर्स याद होने चाहिए, कैम्ब्रिज भी यही कहता है। ठीक है। स्क्वायर नंबर्स आर, वन स्क्वायर इज वन, टू स्क्वायर इज फोर, थ्री स्क्वायर इज नाइन, फोर स्क्वायर इज 16, फाइव स्क्वायर इज 25, सिक्स स्क्वायर 36, सेवन स्क्वायर 49, एट स्क्वायर 64, नाइन स्क्वायर 81, टेन स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 square 144, 13 square 169, 14 square 196, and 15 square is 225, and up to so on. So you have to do what? आपको as a student you have to remember first 15 squares। ठीक है, आपको पहले 15 जो हैं वो स्क्वायर नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है जी। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी, यस और नो? Yes, sir. ओके Yes, जी। sir. ओके, देन वी हैव क्यूब नंबर्स। इसके बाद हमारे पास आते हैं क्यूब नंबर्स। ओके, सो क्यूब नंबर्स। ओके, सो क्यूब नंबर होते हैं बेटा, तो कैम्ब्रिज की तरफ से ये रिकमेंड है कि यू शुड रिमेंबर फर्स्ट 10, फर्स्ट 10 क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे देख चेक करते हैं अपनी नॉलेज। वन क्यूब इज वन, टू क्यूब इज 8, थ्री क्यूब इज 27, फोर क्यूब इज, इबाद बोलो, 64, फाइव क्यूब इज 125, सिक्स क्यूब इज इबाद, व्हाट इज सिक्स क्यूब बेटा? 216। भूल गए हो क्या? सर दिमाग तो आ जाए कर। ओके, 343। चलो आज खैर है, आज आप दोबारा पढ़ना शुरू किया बहुत टाइम बाद। एट क्यूब इज 512, नाइन क्यूब इज 729, एंड 10 क्यूब इज 1000, एंड अप टू सो ऑन। आगे भी हैं इसके। अब ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं बेटा, ये क्यूब नंबर्स हैं, इनके आगे लिख देता हूँ, वन क्यूब, टू क्यूब, थ्री क्यूब। आप इसको कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, यही रिजल्ट आपको देंगे। तो आपको ये रिकमेंडेड होता है कि आप एटलीस्ट पहले 10 क्यूब्स जो हैं वो आप लोग याद करें। ठीक है, 10 क्यूब। जी बच्चे, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. अच्छा, Yes, आपका sir. आपका जो कैम्ब्रिज का जो सिलेबस है वो बिल्कुल मेरे सामने है, और मैं उसी के मुताबिक आप लोगों के नंबर्स का टॉपिक आपको करवा रहा हूँ। ठीक है।
कैम्ब्रिज का टॉपिक कहता है आइडेंटिफाई यूज ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो, प्राइम नंबर्स, स्क्वायर एंड क्यूब नंबर्स, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड रेसिप्रोकल्स। तो इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ रह चुका है इंटीजर सिलेबस में, और हमारे पास रह चुका है इसमें रैशनल इरैशनल भी हो गया, मल्टीपल्स। ओके, सो हमारे पास रह चुके हैं इंटीजर्स। चलें जी, इंटीजर्स जी। यहाँ पे बच्चों को हमेशा डाउट होता है कि इंटीजर्स क्या चीज़ है। इंटीजर्स, दे हैव, इंग्लिश में एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ, अच्छा ये किसी किताब में नहीं मिलेगी, ये मेरी बनाई हुई डेफिनेशन है इजी लैंग्वेज में। दे हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो भी होता है और पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। और ये माइनस की ब्रैकेट यहाँ से भी हम हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी -5 से छोटा -6 भी हो सकता है, राइट? ये बात। Yes, sir. तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव नंबर्स भी जो हैं वो इंटीजर्स में आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी इंटीजर्स में आते हैं, जीरो भी इंटीजर में आता है। ठीक है जी। Yes, sir. लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन गेट अ क्वेश्चन इन द एग्जाम, आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है बेटा कि माइनस माइनस 5 इज व्हाट, इट्स ऑड नंबर, इट्स प्राइम नंबर, और इट इज एन इंटीजर। सो व्हाट डू यू थिंक एवरीबॉडी? Integer. Yes, I know that 5 is an odd number. I know that at the same time that 5 is also a prime number, but it is -5. It is showing some direction. So this is integer. Is this clear, everybody? Yes or no? Yes, sir. This is the game of Yes. all the concepts. This is the game of all the concept only. Let me just sum up the lecture. Like since beginning, we just introduced it. That's my name, Abdul Basit. I'll be teaching two syllabuses in one class, which is 4024 and 0580. Few students, they are appearing in 4024 syllabus. Few students, they are appearing in 0580 syllabus. But the course is 99% same. Only 1% is the difference. So that difference will be tackled easily. The first topic for every math student, whether you are in class 6, class 7, class 1, class O levels, why we study numbers family in O levels? Because if you don't know the numbers, you cannot do maths. Remember that. In the beginning, I said that math is, and especially you can see that okay, that in this lesson, I introduced that there are originally 10 uh, digits, which are from 0 to 9. Yes or no, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay, originally there are 10 digits. Okay, then we classified them. ठीक है, हमने फिर इनको classify किया। पहले हमने कहा जी what are whole numbers? So whole numbers are those numbers which have 0 and the positive numbers. Yes or no? Starting from 0 and it goes till infinite. But the difference between the whole number and natural number is that 0 is not a natural number. You have to remember this fact, जो कि मैंने इस सर्कल में आपके सामने बना के रख दिया। Yes or no? Clear, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Proceeding with the next one. Okay. So next we have, okay, next we have even number. So what even numbers are? Even numbers are those numbers which are divisible by 2, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। इसकी एक हिंट मैंने आपके लिए बनाई थी कि that if a number is ending with 0, 2, 4, 6 and 8, तो वो नंबर इवन नंबर होगा। I asked a question from one of my student that if a number is ending with 6, so he said, sir, it's even number, and if a number is ending with odd number, so it's an odd number. Remember that, okay? So that's the hint to recognize whether the number is odd number or whether the number is even number. Is this clear, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Proceeding with that, next we studied that what is odd number. Odd numbers which are not divisible by 2, जो कि 2 पे कभी डिवाइड नहीं हो सकते, आपको डेसिमल में आंसर्स मिलेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई हैव 3 chocolate candy bars, so I have to divide in 2%, I have to give 1.5 each. Yes or no? I cannot divide them.
in two exact portions. So that is the reason that is an odd number. So 3 is an odd number. Agree? Yes, sir. Then we studied bacha prime number, that what a prime number is. Prime numbers, they have only two factors. I say that very early that it's very important from exam point of view. They have only two factors. The one factor is one and another one itself, कि एक उसका फैक्टर टेबल वन होता है और दूसरा वो टेबल खुद ही होता है. तो ये जो नंबर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं 2 3 5 7 11 एंड अप टू सो ऑन, ये तमाम के तमाम नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आते. ओके, देन वी हैव कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स. इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. इसका मतलब है कि ये नंबर जो है ये बहुत सारे टेबल्स में आएगा. तो इसकी एक हिंट हमने ये बनाई कि अगर एक नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो वो डेफिनेटली एक कंपोजिट नंबर है. ठीक है, हमने फैक्ट एक पढ़ा कि 2 इज नीदर प्राइम, सॉरी 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, कि 1 जो है ना तो प्राइम नंबर में आता है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर में आते हैं. क्योंकि इबाद आप देख सकते हैं कि अगर 1 के फैक्टर्स की बात की जाए तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो खुद ही है. यस और नो? Yes, sir. तो ना ही वो प्राइम नंबर की डेफिनेशन में लाई करता है और ना ही वो कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन में लाई करता है. इज दिस क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Okay, then we studied irrational number, the most trickiest number in the numbers family, and it's very important from exam point of view because we always get a 1 mark question on irrational numbers. But are those numbers which cannot be written as a fraction. जब आप किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में ना लिख सको तो वो नंबर जो होगा वो इर्रेशनल नंबर होगा. जैसे हमने एग्जांपल दी पाई की, ठीक है, फिर हमने कहा स्क्वायर रूट्स होते हैं तकरीबन 99% स्क्वायर रूट्स और 1% इज पाई. ठीक है जी, हमने कैलकुलेटर पे चेक किया कि स्क्वायर रूट 64 बेटा 8 के बराबर है तो इसको मैं रैशनल बोल दूंगा. ठीक है, जबकि स्क्वायर रूट 65 जो है ये 8 पॉइंट समथिंग के बराबर है तो ये इर्रेशनल नंबर है क्योंकि इतने बड़े नंबर को मैं फ्रैक्शन में नहीं लिख सकता. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, Yes or no? sir. All right. Proceeding, then we studied square numbers. According to the Cambridge syllabus, Cambridge के syllabus में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है बेटा कि you have to remember first 15 squares. आपको पहले 15 स्क्वायर याद होने चाहिए. तो ये आज आपकी आसानी के लिए नोट्स में मैंने खुद ही लिख दिए हैं, आप लोग इनको याद करें. तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर इज 9. इस तरीके से आप याद करें. जितने आपके टेबल स्ट्रांग होंगे उतना आपका मैथ्स अच्छा होगा. क्यूब नंबर्स कैसे कहते हैं बेटा? कैम्ब्रिज के सिलेबस में लिखा हुआ है कि पहले 10 क्यूब बच्चा याद करके आए घर से, पेपर में टेस्ट होते हैं. सो पहले 10 के 10 क्यूब नंबर्स मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, आपके बिल्कुल सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं. साथ में शेडर इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि मैं कौन सी चीज की कब क्या बात कर रहा हूं. ठीक है, ओके. लास्ट में वी स्टडीड इंटीजर्स. हमने इंटीजर्स को पढ़ा. दे हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो. तो हमने फिर एक एग्जांपल भी दी थी कि हमने -5 लिखा. हमने क्वेश्चन पूछा कि बेटा ये बताएं कि ये ऑड है, प्राइम है या इंटीजर है. वी नो दैट कि 5 ऑड भी नंबर है. वी नो दैट कि 5 प्राइम भी है, सिर्फ अपने टेबल में आता है. और 5 इंटीजर क्यों है यहाँ पर? बिकॉज इस पे नेगेटिव का साइन लगा हुआ है. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, जैसे Yes, sir. sir. वी हैव अ डाउट ना, हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स में बच्चों के बहुत प्रॉब्लम है. जैसे फॉर एग्जांपल इबाद, फॉर ऑल ऑफ यू दिस इज अ लेसन. ओके, फॉर एग्जांपल इबाद, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस? ये क्या लिखा है मैंने? Sir, ये आपने 1.2 ये ओके, इसको मैथ्स में क्या बोलते हैं? Sir, जी, decimal number. आप इसको डेसिमल नंबर बोल सकते हैं. आप इसको कोई भी क्लास में नहीं डाल सकते. गेट इट? ठीक. क्योंकि बाजू का स्टूडेंट कहता है कि सर ये 3.14 जो है वो कहता है कि जी वो कह देता है कि सर 3.14 तो सर ये ऑड नंबर होगा. ठीक है, क्योंकि 3 है. बेटा ये याद रखें, ये 3.14 जहां पर पॉइंट आ जाए आपने उसको डेसिमल ही बोलना है, आपने उसको किसी नंबर की क्लास में नहीं डालना. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपके सामने देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरा समझ डालें थोड़ी सी, पे अटेंशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल 3.142 डैश डैश, ये छोटे डॉट मैंने लगा दिया, मतलब बहुत नंबर आगे कंटिन्यू कर रहा है. और इधर आपके सामने मैंने लिख दिया 3.14. आपके आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप इन दोनों में से ये डिसाइड करो कि which number is which can number can be written as in the form of fraction, or it can ask you that which number is a irrational number.
सो यू नो दैट कि 3.14 को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 314 डिवाइड बाय 1000 लिख के, यस और नो? फ्रैक्शन हो गया कि नहीं? Yes, sir. बट आई कांट राइट दिस वन, यस और नो? Yes, sir. Cricket continues for forever, like I said. Yes, because it is in the continuous process. Is this clear? So then you have to say, Yes, okay, sir. that is my rational number. Okay, Yes, sir. rational. Okay. So हम लोग बिल्कुल बेसिक बेसिक पे भी जाएंगे, क्योंकि बाज बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं हर एक चीज में। तो हर एक बच्चे की उसको डील किया जाएगा। ठीक है जी। ओके, देन वी हैव, हमें ये सीखना है कि व्हाट मल्टीपल्स आर। ओके, मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। मल्टीपल्स मीन, इट मीन्स टेबल। इट मीन्स व्हाट? मल्टीपल का क्या मतलब बेटा? मल्टीपल का मतलब है बेटा टेबल। Table. मल्टीपल का मतलब है टेबल। आप लोग एक मिनट जरा इधर वेट करें, मैं आई बी राइट बैक। जी बच्चे, बेटा मल्टीपल्स का क्या मतलब होता है? Tables. जी, मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल। टेबल, अगर फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आपको कहता है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स मल्टीपल्स ऑफ 3, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? जी, आप आंसर क्या लिखेंगे बेटा? दैट व्हाट आर फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइव ऑफ मल्टी 3? यस, हमें टेबल 3 लिखना है, सिक्स विच इज 3, 6, 9, 12 एंड 15। सो दिस इज माय आंसर, यस और नो? और Yes, अगर sir. आपने पेपर में यस 15 के साथ, 18 लिख दिया, तो यू विल लूज 1 मार्क क्रेडिट फ्रॉम द एग्जामिनर। गेट इट? यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। मल्टीपल्स का मतलब है टेबल। मल्टीपल्स का क्या मतलब है बेटा? टेबल। और स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज मल्टीपल और फैक्टर में होता है। अभी मैं फैक्टर भी लिखता हूँ नीचे, ताकि ये कंफ्यूजन आज खत्म हो जाए, ठीक है? क्योंकि ये 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं पेपर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स। फैक्टर्स का बेटा मतलब क्या है? आसान इंग्लिश में लिखता हूँ, उर्दू में भी ट्रांसलेट करके बोलूंगा ताकि अच्छी समझ आ जाए। ठीक है जी, देखते जाएं। बेटा फैक्टर्स का मतलब है, फैक्टर मीन्स दैट a number a number comes in how many or which tables, कि कितने या कौन कौन से टेबल में एक पर्टिकुलर नंबर आता है। ये इसका मल्टीपल के साथ कोई कंसर्न नहीं है। कीप दिस इन माइंड, ओके? सो फैक्टर्स के बारे में अगर मैं एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में आ जाता है जी, फैक्टर्स ऑफ 16, कि 16 के फैक्टर्स बताएं कि 16 किसके टेबल में आता है। स्टूडेंट क्या जल्दी से शुरू हो जाता है बेटा? 2, 4, 8 इस तरह शुरू हो जाते हैं। ये गलत है तरीका। जब भी आप किसी नंबर का फैक्टर बना रहे हो, आप 1 से टेबल पढ़ना शुरू करें ऐसे। 1 मल्टीप्लाई बाय 16 इज 16, ओके, 2 मिल गए। 2 टाइम्स 8 इज 16, ओके, 2 फैक्टर और मिल गए। फिर 4 टाइम्स 4 is 16. Now see, everybody, please see. You can see that 1 times 16 is 16, but at the same time, 16 times 1 is also 16. Yes or no? Yes, sir. 2 8s are 16, but at the same time, 8 2s are also 16. 4 4s are 16. Now you can see that at this point,
table repeated? Table repeated. Yes or no? Yes, sir. So factors of 16 are factors of 16. They are 1, 2, 4, 8 and 16. इसका मतलब है कि 16 सिर्फ और सिर्फ इन 5 टेबल्स में आता है. Is this clear everybody? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर आपने 16 को इन 5 टेबल्स के बजाय आपने 16 के मल्टीपल्स लिख दिए, you will get 0. Okay? And please do remember that whenever you write factors, you have to start from 1 because 1 is the factor of each and every number. Yes or no? Yes, sir. As a student, better you have to understand the language of the question, that in which mode or in which language the examiner is asking you the question. If you understand the question well, then you can easily execute it. Okay? Yes, sir. ऑल राइट. ओके जी, यहाँ तक हो गया जी हमारा फैक्टर नंबर्स का हमारा इंट्रोडक्शन हो गया खत्म. अब मैं जरा वन बाय वन सबसे बात करूंगा. जरा काइंडली प्लीज मुझे बताइएगा वन बाय वन. हाय का अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? Islam, fine, sir. बेटा यू फ्रॉम विच स्कूल सिस्टम? Six school, Sialkot. ओके, एंड यू आर अपीयरिंग इन May June, राइट? October, November 2023. Okay, October November 2023 and the syllabus code is 4024, right? Yes. Okay, thank you. Ibad, I know about you that 0580 October November, right? Exactly, sir. Okay, I have one name Kailash. Can you hear me? Yes, sir. Kailash, can you hear me? Yes, I hear you. Okay, beta, when you are appearing? Next year, May, June. May, June. Next year May. Okay, okay. And the syllabus code is 4024, right? Oh, 0580. Sir, I have Okay, some 0580 queries. Can I- IGC. Better you can send it on my WhatsApp, okay? Oh, Which I want to queries? ask you, should I opt zero Yes, of please. should I do O levels or IGCSE? Which one is better for private candidate? Beta, both are better for you, but I'll recommend whether if you are math without calculator is good, so then you should go for 4024, okay? If I'm not good, then 0580. Yes, 0580, because in 0580 both the papers have the calculator. Okay. And what about Mariam? Beta, can you hear me? Yes, sir. I Mal- can hear you. Yes, okay. Beta, what's your name? Mariam. Okay, and you from which school system? Lakas. Okay, and you appearing in which syllabus, 0580 or 4024? 4042 O levels. Okay, it's 4024. Okay, बच्चा, ठीक है. I'll जी. send both the syllabuses in the group. मैं दोनों syllabuses आप लोगों को ग्रुप में भेजवाऊंगा, ठीक है. बेटा माइक बंद कर दें. आप लोगों ने जो IGCSE का स्टूडेंट है वो IGCSE के सिलेबस को पूछ ले. अगर आप में से किसी को कोई डाउट है, आप लोग मुझसे बात करो, कॉल पे बात करेंगे और कॉल पे बात करके डिसाइड कर लेंगे कि आपको कौन सा सिलेबस देना चाहिए. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके जी, आज की हमारी क्लास आपके साथ जो थी ये एक डेमो क्लास भी थी, ठीक है. आज हमारा फर्स्ट था मैथ्स की क्लास बेटा, होगी मंडे टू थर्सडे, ठीक है. 4 days a week, ठीक है. 6 to 7 इज द क्लास टाइमिंग. यू हैव टू बी रेगुलर, ठीक है. आप लोग क्लास से ज़्यादा मिस नहीं कर सकते. क्लास रिकॉर्ड हो रही होती है. हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है तो रिकॉर्डिंग क्लास जैसे ही ख़त्म होगी नोट्स आपके ग्रुप में शेयर हो जाएंगे. और आप में से अगर कोई बच्चा ग्रुप में नहीं है तो काइंडली क्लास के बाद नूर को कहकर आप लोग अपने आप को ग्रुप में इंटर करवा लो. यूट्यूब के ऊपर इस क्लास को मैं अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डिंग. आप लोग बाद में वहां पे से सुन भी सकते हैं. लेकिन जो बच्चा लाइव क्लास लेता है उसको रिकॉर्डिंग सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती. आपने रिकॉर्डिंग हमेशा तब सुननी है जब आप लोगों से कोई क्लास मिस हो जाए या कोई पर्टिकुलर चीज़ समझ ना आए, ठीक है. एंड देन फील फ्री टू आस्क मी. आप लोग मुझसे DM में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पे आंसर करूंगा. कोशिश ये करें कि जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हुआ करें
उसी चीज के हवाले से क्वेश्चन पूछा करें, ठीक है। आगे बढ़ जाया करें, ताकि ये ना हो कि फिर अगर फॉर एग्जांपल हम एक नंबर्स पढ़ रहे हैं और आप लोग अगर मुझसे अलजबरा का क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आपको आंसर तो कर दूंगा, लेकिन कोशिश करो जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे करो, बिकॉज हमारे पास अक्टूबर तक 3 मंथ्स हैं। जो बच्चे अक्टूबर नवंबर में अपियर हो जाएंगे वो तो रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन जो बच्चे अक्टूबर नवंबर में अपियर नहीं हो रहे आगे जाएंगे, तो उन्होंने अपना स्टेप वाइज पूरा काम खत्म करना है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. It's a good chance for all of you to recognize me, to recognize yourself, to recognize your mistakes, and let's discuss all of those mistakes together so that we can easily fix it. If any one of you have any particular question, I'm welcome all of you. You can just open your mic and you just simply ask me a question that, sir, this is the concern I have. Please. Okay, I have one more ID. But you just left again. So it's Noodle Poodle. Okay. Who's who's she or he? Can you hear me? Hello. ओके, आई गेस फॉर सम रीजन उसकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। अच्छा बच्चे, ये क्लास के बाद ये मैं नोट्स आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज थोड़ा सा लाइट पढ़ाना है, ठीक है, ताकि आपको एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट आप लोगों को जो आपकी क्लास है, इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह मंडे को, ठीक है। मंडे टू थर्सडे रेगुलर हमारी क्लासेस होंगी, ठीक है। बीच में सिर्फ एक ईद ब्रेक आएगा, उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग कहीं भी जाते हैं, किसी दिन आप लोग छुट्टी करते हैं, तो काइंडली मुझे ज़रा पर्सनल में मैसेज करके बता दिया करें कि सर फॉर दैट रीज़न मैं ये क्लास नहीं ले सकता। तो फिर वो रिकॉर्डिंग का लिंक जो है अभी क्लास के बाद आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा अगर मैं बता पाऊँ तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसको कर लो अपने पास सेव, स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं इसका लिंक भिजवा दूंगा आपको। तो आप लोग यहाँ पर जो है ये देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये सिंपल सा थोड़ा सा दिखा दूँ ज़रा 1 मिनट के लिए। स्क्रीन आ रही है आपको? Yes, sir. ओके, जस्ट वेट अ सेकंड कि ये ज़रा लोड हो गया। ओके जी, देखें, स्टडी विद अब्दुल बासित के नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा, ठीक है। यहाँ पर अपलोडेड है। मैं यहाँ पे एक नई प्लेलिस्ट बनाऊंगा, देखिए फोर्थ कॉलम इस प्लेलिस्ट में एक नई प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें लिखा होगा मैंने समर क्लासेस 2023। तो वो प्लेलिस्ट आपकी होगी। जैसे मैंने ये देखें डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, यहाँ पे ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोडेड भी हैं, ठीक है। आपके लेक्चर्स जो हैं वो वहाँ पर आएंगे। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. चलें, इबाद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जा सकते हैं वन बाय वन। No, sir. Thank you, sir. Allah Hafiz. थैंक यू। Always. जी, हाय का, do you have any question, बच्चे, any query? Sir, सर I मुझे hear. रियल एक मिनट, मैं आपसे बात करता हूँ कैलाश जी। सर जो रियल नंबर्स हैं वो रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। जी जी, रियल नंबर्स की दो ही डिस्ट्रीब्यूशन है, एक है रैशनल और एक है इरेशनल नंबर, ठीक है जी। जी सर ठीक है। ओके, आपका कोई और कंसर्न है? अगर कोई और क्वेश्चन हो तो मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकती हो, ठीक है। मेरा नंबर भी ग्रुप में है, ठीक है। यस सर ठीक है। अपने नंबर से ज़रा मुझे मैसेज कर देंगे, मुझे मैं आप लोगों के नंबर सेव करूँ, ठीक है। ओके सर। ओके कैलाश। Yes, sir. I want to ask what is the differentiate between the rational and irrational? बेटा देखिए, रैशनल और इरेशनल नंबर्स के अंदर एक एक ही इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस अगर आपका एक दफ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना इरेशनल नंबर्स का, ठीक है, तब आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, उनको हम फ्रैक्शंस में नहीं लिख सकते, ठीक हो गया। सर कैन यू एक्सप्लेन इंटीजर? जी बिल्कुल, इंटीजर्स बेटा क्या है अच्छा एक मिनट, मैं ज़रा पहले कैलाश का क्वेश्चन कर दूं। ये याद रखें बेटा, रैशनल नंबर्स में बेटा हमारे पास इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, क्योंकि हम लोग उनको लिख सकते हैं ना फ्रैक्शन में। यस और नो? कैलाश, कैन यू हियर मी? Yes, sir. देखो, रैशनल नंबर में जितनी भी हमने नंबर टाइप्स पढ़ी हैं तमाम के तमाम रैशनल नंबर्स में आते हैं, क्योंकि हम उनको फ्रैक्शन में लिख सक रहे होते हैं, ठीक है। जबकि इररेशनल नंबर्स आर दोज नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब है कि जिनको लिख सकते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। क्लियर है? Yes, clear. ओके, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो इजीली तुम मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू खतीजा। I was asking about integers.
ओके बेटा, इंटीजर्स के हवाले से अभी हम लोगों ने ऊपर नोट्स में भी लिखा है कि ये देखें, लिखा है मैंने, दे हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। इसमें पॉजिटिव भी नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होता है और जीरो भी होता है। समझाने के लिए मैंने -5 लिख दिया, ठीक है भाई, क्लियर है? अब यस -5 सर। क्या है? -5 जो है ये माइनस इसके साथ लगा हुआ है तो ये इंटीजर में जाएगा, ओके। ओके सर। तो मतलब कि इंटीजर्स आर दोज नंबर जिसमें पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं और जीरो भी आता है। मतलब जीरो से राइट साइड पे जाओगी पॉजिटिव है, जीरो से लेफ्ट पे जाओगी तो नेगेटिव है। क्लियर है भाई? यस सर। गुड लक, थैंक यू। कैलाश बेटा, आप मुझे बता, आप जा सकती हैं कैलाश। Yes, sir. जी बेटा, आप मुझे ये बताएं कि आप इस साल अपीयर हो रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर अपीयर हो रहे हैं? Next year. ओके, नेक्स्ट ईयर अपीयर हो रहे हो। और कौन से सिटी और कौन से स्कूल से हैं? मैं प्राइवेट हूँ एंड अच्छा, प्राइवेटली कर रहे हैं, प्राइवेटली कर रहे हैं। तो प्राइवेटली कर रहे हैं तो फिर तो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस आर मच मोर फिजिबल देन द फेस टू फेस एकेडमीज। और कौन सी सिटी से हैं ये आपने बताया मुझे? कराची। ओके, कराची। ओके, गुड लक। चलें जी, ये हमारी डेमो क्लास थी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप वीडियो से भी पढ़ना चाहो तो आप मेरे यूट्यूब के लेक्चर से वीडियोस देख के पढ़ सकते हो, ठीक है। सही। चलें जी, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैन यू हियर मी?